الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. معزز حاضرین سامعین کرام، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آج موجود ہیں، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ ہندوستان کے آئین میں ہندوستان کے شہریوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان حقوق و ذمہ داریوں کے بیچ کیا کیا چیلنجز ہیں، ہم کس قسم کی امیدیں رکھتے ہیں، کس قسم کی چنوتیاں ہیں، کیا کیا خدشات ہیں. ہم انشاءاللہ ان تمام گوشوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم میں سے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم 1947 سے پہلے غلام بھارت میں جی رہے تھے، یعنی انگریزوں کا ظالمانہ نظام حکومت تھا، جس کے خلاف ملک کے باشندوں نے باضابطہ کوشش کی، لڑائی لڑی، اور ایک وقت آیا جب 1947 میں بھارت آزاد ہوا، یہ ملک انڈیپینڈنٹ ہوا، اور ہم ایک ایسے ملک کے باشی ہوئے جو اپنے آپ کو بہت فخر کے ساتھ آزاد کہتا ہے، جس کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک باضابطہ قانون کی کتاب ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے، اور جس میں حقوق بتائے گئے ہیں، جس میں ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، ملک کے شہری کیسے جئیں گے. 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ دستور قبول کیا گیا، یہ دستور منظور ہوا، نافذ کیا گیا. 26 جنوری 1950 عیسوی کو، گویا اگر آپ دیکھیے تو 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب ہم اس قانون کے تحت باضابطہ اس ملک میں رہ رہے ہیں. سب سے پہلے 26 نومبر 1949 کو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی، اس نے یہ دستور بنایا، اور 26 جنوری 1950 کو باضابطہ اسے نافذ کر دیا گیا. یہ دراصل اس سے پہلے جو ہمارا ملک تھا، یعنی اگر 1947 کے بعد 1948 1949 یہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہے، یہ ذہن میں آتا ہے پھر یہ ملک ہمارا کیسے چل رہا تھا. تو یہ دراصل 1935 میں ایک انڈین ایکٹ تھا جس کے تحت ہمارا ملک چل رہا تھا، اور اس کو بدل کر کے یہ قانون نافذ کیا گیا. یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 26 جنوری کا دن اس لیے متعین کیا گیا کہ 1930 میں 26 جنوری ہی تھی جب کانگریس نے کمپلیٹ فریڈم، مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا انگریزوں سے. تو اس تاریخ کو پس منظر میں رکھیے اور پھر سمجھیے کہ 26 جنوری کا جو سگنیفیکنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ اس سلسلے میں کیا ہے. گویا جب 26 جنوری آتا ہے تو یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اسی تاریخ کو سب سے پہلے یہ شعور بیدار کیا اور یہ مطالبہ رکھا کہ ہم غلام نہیں رہیں گے، ہم آزاد ہوں گے. اور جب ہم نے قانون مکمل بنا لیا، آزاد ہو گئے، تو ہم نے گویا کہ اپنی قوم کو ایک آزاد قانون دیا، اور ہر اعتبار سے آزادی کا جو ایک شعور ہو سکتا ہے، جو ایک سینس ہو سکتا ہے، اس سینس کو ڈیولپ کیا. ہندوستان کا جو یہ قانون ہے، یہ جو دستور ہے، یہ جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن، سمویدھان ہے، یہ کسی ایک ملک کو دیکھ کر کے نہیں بنایا گیا. یورپ کے کئی ممالک، خاص طور سے امریکہ، UK اور آسٹریلیا وغیرہ کے جو ممالک ہیں، ان کے جو قوانین تھے ان کا بہت اچھی طرح دراسہ کیا گیا، خوب اچھی طرح اسٹڈی کیا. ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے بہت اچھی طرح مطالعہ کیا، اور اس کے بعد ایک قانون، ایک دستور بنایا گیا جس کو باضابطہ 26 جنوری 1950 عیسوی میں نافذ کیا گیا.
तब से आज तक मुल्क उस कानून के तहत चल रहा है और हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद अहम ममालिक में है, सबसे बड़ी जमहूरियत है जो बड़ी कामयाबी से रूल ऑफ लॉ के तहत चलता रहा है, जहां कामयाबी से इलेक्शन होते हैं, कामयाबी से हुकूमतें बनती हैं, अपनी मियाद पूरी करती हैं और जब नई हुकूमत इलेक्शन प्रोसेस के तहत आती है तो नई हुकूमत बनती है और सिलसिला चलता है। इस खास तनाजुर में हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान को जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसमें आम शहरियों को बतौर आम और अकलियतों को, माइनॉरिटीज को स्पेशली बतौर खास चंद हुकूक दिए गए हैं जो फंडामेंटल हुकूक की हैसियत रखते हैं। फंडामेंटल जो हुकूक हैं उसके लिए एक यूएन चार्टर भी है, यानी फंडामेंटल हुकूक को इधर उधर करने की सलाहियत दुनिया के किसी भी मुल्क की नहीं होती है। यानी बेसिकली जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मानना और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, ये दुनिया के तमाम लोगों की, तमाम ममालिक की एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में हमारे मुल्क ने अपने तौर पे, हमारे आईन ने अपने तौर पे अपने शहरियों को जो मुतय्यन हुकूक दिए हैं वो बहुत अहम है। नंबर एक, जब आप इन हुकूक पे गौर करेंगे तो दिलचस्प हैं और आज के तनाजुर में जब हम खदशात की बात करते हैं तो इनको समझने में आसानी भी होगी। हमारा मुल्क हमें मसावात का हक देता है। मसावात का हक का मतलब यह है कि कानून की नजर में हर फर्द यकसा है, एवरीबॉडी इज इक्वल। किसी को किसी पे किसी किस्म की कोई फजीलत किसी भी बुनियाद पे हासिल नहीं है। जो आदमी इंडियन है वो इंडियन है और वो इक्वल राइट रखता है हर एतबार से, वो हर एतबार से बराबर है, इक्वल राइट रखता है, मुकम्मल समानता है उसके अंदर। एक आदमी हो सकता है कि किसी और खित्ते से आता हो सकता है कि वो कोई और जुबान बोल रहा हो सकता है कि उसका रंग कोई और हो सकता है कि उसकी नस्ल कोई और हो, लेकिन इन तमाम बुनियादों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के कानून की नजर में, दस्तूर की नजर में वो बराबर माना जाएगा। दूसरा इससे जुड़ा हुआ हक है आजादी का हक। आजादी का हक का मतलब यह है कि एक आदमी अपनी बात रख सकता है, एक आदमी मुकम्मल तरीके से आजाद होगा कि वो मुल्क के किसी भी खित्ते में जाकर के कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है, काम कर सकता है, हुकूमत के किसी पॉलिसी पे अपनी कोई राय दे सकता है, कोई तनकीद कर सकता है, उसको ये मुकम्मल आजादी हासिल होगी। एक आजादी ये हासिल होगी कि अगर उसके खिलाफ कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म की वो मुजाहिमत कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, कानूनी चाराजोई कर सकता है। ये उसका हक है हर फर्द का, मुल्क के एक एक शहरी का उसका ये हक है। तो उसको मजहबी आजादी हासिल होगी, वो जिस मजहब को चाहे मान सकता है, जिस मजहब को चाहे प्रैक्टिस कर सकता है और जिस मजहब को मान रहा है, जिस मजहब को प्रैक्टिस कर रहा है, उस मजहब की वो बाज़ाब्ता तबलीग भी कर सकता है, उसकी तरफ लोगों को पुरअमन तरीके से दावत भी दे सकता है। यानी एक आदमी अगर हिंदू है तो वो मुसलमान हो सकता है, इस्लाम कबूल कर सकता है। एक ईसाई है तो वो कोई दूसरा मजहब कबूल कर सकता है, एक कोई दूसरे दीन को मानने वाला है तो वो कोई दूसरा दीन कबूल कर सकता है। अगर वो दिल से ऐसा करना चाहता है तो ये आजादी उसे हासिल है। इसी तरह जो भी फर्द है उसको तालीम का हक दिया गया है, उसको अपने कल्चर को महफूज करने का हक दिया गया है, उसकी जो भी तहजीबी शनाख्त है उस शनाख्त की हिफाजत का उसको हक हासिल है और उसकी तहजीब व शनाख्त को बर्बाद करने की या मिटाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ इन तमाम हुकूक के रहते हुए हक जो मिल्कियत है वो उसको हासिल है। ये अलबत्ता है ये बात अलबत्ता हुई कि बाद में हक के मिल्कियत को जो बुनियादी हुकूक है वहां से निकाल करके आम हुकूक में डाला गया, ताकि अगर हुकूमत को कभी कोई ऐसी जरूरत पेश आए कि रिफाह आम्मा के लिए किसी मिल्कियत से किसी को दस्तबरदार करना पड़े और उसको कोई और उसकी जगह मिल्कियत देनी पड़े तो उसमें आसानी हो, उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई। लेकिन बुनियादी तौर पे इंसान को उसकी जिंदगी का हक, इज्जत व आबरू का हक, कमाने खाने का हक, जो बुनियादी हुकूक माने जाते हैं, ये हुकूक मुल्क के दस्तूर ने एक एक फर्द को दिया है।
اور یہ جو دستور ہے اور یہ جو ملک ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ ملک کی جو حکومت ہے، ملک کا جو مقننہ ہے، منفذہ ہے، یہ دراصل ملک کے ہی افراد ہوں گے. یعنی ہم خود گورنمنٹ فارم کریں گے، ہم ووٹ دیں گے، ہمارے ذریعہ حکومت بنے گی، ہمارے لیے بنے گی، ہمارے لیے کام کرے گی. یہ بیس ہے جس بیس پہ ہندوستان کا آئین استوار ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں اس آئین کے تحت رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ذمہ داریوں میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی قدروں کا، پرچم کا، آئین کا، آپ کو ترانوں کا احترام کرنا ہے. ملک کی جو خود مختاری ہے، اتحاد ہے، سالمیت ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کو آگے رہنا ہے. ملک کے دفاع کی ضرورت پڑے تو آپ کو اپنی خدمت پیش کرنی ہے. ملک کے جو پراپرٹی ہے، عام جو پبلک پراپرٹی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، نقصان نہیں پہنچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور ملک میں انسانیت کے ماحول کو پروان چڑھانا ہے، آپس میں محبت کو پروان چڑھانا ہے، بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہے. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں اور بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ہمارے دستور نے بتلایا ہے. تو ایک فرد کی حیثیت سے بھی ایک آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اسے جو حقوق ملنے چاہیے وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. اگر نہیں مل رہے ہیں تو کیا حقوق کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور جو فرائض اس پہ عائد ہوتے ہیں کیا وہ ان کو ٹھیک سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ہندوستان کے اس دستور کے پیچھے ہندوستان کی آزادی کی جو جد و جہد ہے وہ بہت معنی خیز ہے. عام طور پہ دستور پہ بات کرتے ہوئے، ہندوستان کے آئین پہ بات کرتے ہوئے لوگ جو اس کا خلفیہ ہے، جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. اس کی طرف جانا اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی جو مشترکہ کوشش تھی، جو میوچول ایفرٹ ڈالی گئی، اس نے دراصل یہ راہ کھولی کہ ہندوستان جو مختلف قومیتوں سے مل کر بنتا ہے، ہندوستان جو مختلف زبانوں سے مل کر بنتا ہے، ہندوستان جو مختلف رنگوں اور نسلوں سے مل کر بنتا ہے، ہندوستان جو مختلف تہذیبوں سے مل کر بنتا ہے، ویسے میں ایک قومی وقار کیسے قائم ہوگا، ایک قومی اتحاد کیسے قائم ہوگا. یعنی یہ اختلافات بھی رہیں، یہ ساری چیزیں بھی رہیں، یہ تنوع بھی رہے، اور چمن جو ہے وہ لہلہاتا بھی رہے. یعنی چمن میں صرف ایک پھول نہ ہو، مختلف طرح کے پھول ہوں اور چمن کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے. یہ کیسے ممکن ہے، اس کو کیسے سیف گارڈ کیا جائے گا، یہ سکھلایا دراصل ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد نے، جس میں ہندو بھی آگے آگے تھے، مسلمان بھی آگے آگے تھے، سکھ بھی آگے آگے تھے، کمیونسٹ بھی آگے آگے تھے، نارتھ کے لوگ بھی تھے، ساؤتھ کے لوگ بھی تھے، ایسٹ کے لوگ بھی تھے اور ویسٹ کے لوگ بھی تھے، مشرق مغرب پورا پچھم، ہر طرف کے لوگ مل کر کے، ہر رنگ و نسل کے لوگ مل کر کے، ہر تہذیب اور زبان کے لوگ مل کر کے، ہر مذہب اور دھرم کے لوگ مل کر کے ملک کی لڑائی لڑ رہے تھے. تب جا کر کے ملک آزاد ہوا تھا. تو ملک کی ترقی کا راستہ، ملک کو آگے بڑھانے کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو ہمیں آزادی کی جد و جہد نے دکھلایا اور جس کو دستور نے متعین کیا. دستور کو محفوظ رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے آئینی ادارے ہیں. ان میں سب سے اہم جو ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ. عدلیہ کی ذمہ داری ہے، کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے، وہ دیکھے کہ آئین سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی جا رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دستور دیا گیا ہے اس دستور کے مطابق ملک نہیں چلایا جا رہا ہے. تو عدلیہ کو ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی قانون اگر مقننہ بنا رہا ہے، جو لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، الیکٹ ہو کر کے، سلیکٹ ہو کر کے آتے ہیں، کہیں کوئی ایسا قانون تو نہیں بنا رہے ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا کام کرے گا. یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے اسی لیے کہ وہ چیک کرے اور یہ بتائے کہ کوئی قانون کہیں ایسا تو نہیں کہ ملک کے بنیادی حقوق بنیادی قانون کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے ملک کے قانون میں امینڈمنٹ کے لیے، تبدیلیوں کے لیے تو جگہ ہے، لیکن بنیادی تبدیلیوں کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ملک کا ڈھانچہ سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے، ریپبلک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ڈائیورسٹی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ یونیٹی ہو لیکن ڈائیورسٹی کو ختم نہ کیا جائے. ڈائیورسٹی کی حفاظت کرتے ہوئے یونیٹی کو آگے بڑھانے کی
कोशिश हो। ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के आइन का खुलासा है और दुनिया के चंद बेहतरीन आइन में हिंदुस्तान का एक सेकुलर आइन, एक जमहूरी आइन माना जाता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो हिंदुस्तान ने किसी एक कानून को बुनियाद नहीं बनाया, मुख्तलिफ कवानीन को सामने सामने रखते हुए हिंदुस्तान की जमीनी सतह की जो जरूरतें थी, जो तकाजे थे, उन तकाजों को सामने रखा गया और उसके मुताबिक इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया कि एक ऐसा कानून हमारे पास है जिसमें हर तबके की नुमाइंदगी भी किसी न किसी शक्ल में होती है और हर तबके के लिए ये राह निकलती है कि वो जायज तरीके से ईमानदाराना तौर पे मेहनत करके, हर फर्द और हर जमात ईमानदाराना तौर पे मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकती है, अपने आप को महफूज कर सकती है, अमलाक बढ़ा सकती है, तहजीब की हिफाजत कर सकती है, जानो माल आबरू की हिफाजत कर सकती है और प्रोस्पर कर सकती है। ये बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का आइन है जो इन तमाम चीजों को सेफ गार्ड करता है, इनके रहनुमा उसूल देता है और हमारी जिंदगियों में एक बेहतर मिशअल के तौर पे, एक बेहतर चिराग के तौर पे काम करता है। यहाँ समझने की जरूरत है कि आइन में हर आदमी को उसकी मजहबी आजादी इंश्योर की गई है। इसका मतलब यह है कि किसी भी आदमी को इबादत के मामले में परेशान नहीं किया जा सकता, किसी भी आदमी से हक के बंदगी नहीं छीनी जा सकती, हक के तहजीब हिफाजत तहजीब नहीं छीनी जा सकती। अगर कोई किसी की तहजीब को मिटाने की कोशिश करता है, किसी की मजहबी शनाख्त की बुनियाद पे उसको टारगेट करता है, किसी के रंगो नस्ल की बुनियाद पे टारगेट करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उस दस्तूर की रूह के खिलाफ जाता है, मुल्क की बुनियाद के खिलाफ जाता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ दरअसल लोगों को आगाह रहना चाहिए, मुतनब्बे रहना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बतौर खास जो अदालतें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करती रहें, देखती रहें कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। ऐसे में अब जरा आप आज के तनाजुर को देख लीजिए, मुख्तलिफ समतों से बार बार ये बात आती है कि हम मुल्क का आइन बदल देंगे, हम मुल्क का दस्तूर बदल देंगे, या ये कि हम ऐसी ऐसी तब्दीलियां कर देंगे कि दस्तूर अपनी जगह पे बाकी नहीं रहेगा, या ये बात आती है कि कोई माने या न माने हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो कोई दस्तूर को बदलने की बात करता हो, उसके सेकुलर ढांचा को तब्दील करने की बात करता हो, या कोई हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने की बात करता हो, वो सब के सब असलन इस दस्तूर के खिलाफ हैं, इस मुल्क के खिलाफ हैं, मुल्क की इस आइन के खिलाफ हैं, उसकी रूह के खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, ऐसे लोगों की नीयतों से पर्दा उठाना जिम्मेदारी है। ये लोग दरअसल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह एक खास मजहब को, एक खास कल्चर को, एक खास जुबान को तमाम लोगों पे हावी कर दिया जाए और लोगों को उनके हुकूक से वंचित कर दिया जाए, उनको उनके हुकूक से महरूम कर दिया जाए। हिंदुस्तान में ऐसी आवाजें उभरती रहती हैं। यह अफसोसनाक बात है कि आरएसएस संघ परिवार के जेरे पर सरपरस्ती आज हुकूमत भी ऐसे लोगों की है जो बजाहिर तो आकर के आइन के सामने माथा टेकते हैं, लेकिन असलन उनके दिल में ये नियत पोशीदा है जिसका इजहार किसी न किसी शक्ल में होता रहता है कि वो आइन को बदल देंगे। तो एक तरफ जो हिंदुस्तान को खतरा है, जो इस आइन को खतरा है, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों से है, इस तरह की जहनियत रखने वाले लोगों से है। दूसरी तरफ उन तमाम अधिकारियों से है, अफसरान से है जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, उन तमाम अदालत में बैठे हुए जजों से है जिनको ये याद नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्होंने शपथ किस बात का लिया है और उनको करना क्या चाहिए। उन तमाम नेताओं से है जो भड़कीले भाषण देकर एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ भड़का करके अपने जाती मफाद के लिए वोट हासिल करने के लिए एक कौम को, एक मिल्लत को दूसरी मिल्लत के खिलाफ खड़ा करते हैं, मुल्क का वातावरण खराब करते हैं। इन तमाम से आइन को खतरा है। इसी तरह खतरा है उस आम आदमी से भी जो मुल्क के कानून के मुताबिक नहीं चलता, कानून को अपने हाथ में लेता है और मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है। इन तमाम लोगों से आइन को खतरा है और इन तमाम लोगों से आगाह होने की जरूरत है। समझने वाली बात यह है कि कोई भी मुल्क अगर अपने दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा,
कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो अमन व अमान नहीं होगा, और जब अमन व अमान नहीं होगा तो न वहाँ खुशहाली होगी, न वहाँ तिजारतें फलेंगी फूलेंगी, न वहाँ तालीम आगे बढ़ेगी, न वहाँ मौके आगे निकलेंगे। और जिस तरह की शक्लें सामने आती रहती हैं, जिस तरह के हंगामे होते रहते हैं, और जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईनी इदारे हैं, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, उससे अहले नजर खास तौर से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये खतरा महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो आने वाला कल है वो बहुत रोशन नजर नहीं आ रहा। इसलिए मुल्क के तमाम लोगों को इस खास हैसियत से देखने की जरूरत है, अपने आप को बेदार रखने की जरूरत है। डेमोक्रेसी में मीडिया को फोर्थ स्तंभ के तौर पे देखा जाता है, यानी जो पिलर है, अगर 4 पिलर हैं इस जमहूरियत के, तो चौथा अहम तरीन जो पिलर है, जो सुतून है इस जमहूरियत का, वो मीडिया है। हिंदुस्तान के मीडिया की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दर्जे में अफसोसनाक है। वो दिन ब दिन ये कोशिश में मसरूफ है, इस कोशिश में मसरूफ है कि मुल्क का आईनी ढांचा कमजोर हो, इस कोशिश में मसरूफ है कि लोगों को लोगों के खिलाफ खड़ा किया जाए, इस कोशिश में मसरूफ है कि ज्यादा से ज्यादा वातावरण ज्यादा से ज्यादा खराब हो, गर्म रहे, ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, ताकि जो सत्ता में बैठे हुए उनके लोग हैं उनको शाबाशी दे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क का आईन कहाँ जा रहा है, मुल्क का दस्तूर कहाँ जा रहा है, लोगों की हालत क्या हो रही है और सूरत हाल कैसी बन रही है। ऐसे में काफी अलार्मिंग सिचुएशन जिसको कह सकते हैं, हम वो फील करते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब यह है कि अगर मुल्क में मॉब लिंचिंग हो जा रही हो, किसी एक आदमी को इसलिए मार दिया जा रहा हो कि उसका चेहरा मुसलमानों का चेहरा है, एक आदमी को इससे रोका जा रहा हो कि वो अपने घर में नमाज बाजमात कैसे पढ़ सकता है, और उसमें भी इदारे जो सरकारी इदारे हैं वो आगे बढ़ रहे हो, पुलिस आकर के कोई एफआईआर कर रही हो, तो बहुत ज्यादा आदमी को आगाह होने की जरूरत है, चौकन्ना होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। और पहले मरहले में ये लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है या अकलियत के खिलाफ है, लेकिन असलन ये पूरे मुल्क के उस बुनियादी दस्तूर के खिलाफ है, उसकी रूह के खिलाफ है। और एक वक्त आता है जब इसकी चपेट में सारे कमजोर आते हैं। दस्तूर इसीलिए है कि हर एक को वो जो महफूज होने की का सेंस है, वो जो महफूज होने का एक अमन व अमान है जहन में, वो दिलाया जा सके। अगर दस्तूर ये काम नहीं कर पा रहा है, खासतौर से इस वजह से कि दस्तूर को चलाने वाले लोग उसके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, तो बकिया तमाम लोगों की, इंसाफ पसंदों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आवे, मुल्क को बचाने की कोशिश करें, दस्तूर को बचाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है जब मैन जो एजुकेशन अपोजिशन पार्टी है उसने दस्तूर को बचाने को, सेफ करने को बाज़ाब्ता इलेक्शन का मुद्दा बनाया, अहम तरीन मुद्दा बनाया। और ये आम बात नहीं थी, और ये भी नहीं था कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का कोई हरबा था, इसके पीछे बहरहाल असबाब थे। ऐसे में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमेशा ये पॉइंट याद रखनी चाहिए कि जब कभी दस्तूर से खिलवाड़ होगा तो उसकी जद में कमजोर आएंगे। इस बात का एहसास सबसे ज्यादा अगर किसी को था तो भीमराव अंबेडकर को था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगुवाई की, उसकी क़यादत की। और उसके बाद इसका एहसास अगर सबसे ज्यादा था तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को था। वो कहते थे कि अक़लियतों का तशद्दुद मसला नहीं है, यानी अगर माइनॉरिटीज में कोई ऐसी भावना पैदा होती है, ऐसा कोई जज्बा पैदा होता है जिसमें किसी किस्म का कोई तशद्दुद है, तो ये कम खतरनाक है मुकाबला इसके कि अक्सरियत की यहाँ मेजोरिटी है मुल्क की, जो अक्सरियत है उसके अंदर कोई तशद्दुद का जज्बा उभर जाए, क्योंकि वैसी सूरत में उसको कंट्रोल करना मुश्किल है और वैसी सूरत में बचा पाना आसान नहीं है। अक्सरियत के हाथ में तादाद की कुव्वत होती है, अक्सरियत के हाथ में दूसरे और तमाम वसाइल होते हैं। इसलिए
अगर अक्सरियत तशद्दुद की तरफ जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक रुझान माना जाता है। पढ़े लिखे लोग इसको समझते हैं। आज हिंदुस्तान के तनाजुर में इस चीज़ को अहले इल्म महसूस कर रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जो मेजॉरिटी एक खास जहनीत से आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रही है, एक कोशिश लगातार जारी है जिसमें मीडिया का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। फेक न्यूज़ के ज़रिया मुख्तलिफ चीज़ें फैलाई जाती हैं ताकि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ करके सत्ता का भी मजा लूटा जाए और मुल्क की जो हैसियत है, सेकुलर जो उसका फैब्रिक है, उसको कमजोर किया जा सके। वक्ती तौर पे ये एक फायदे का सौदा नजर आता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सत्ता का मजा लूटेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐसी तमाम कोशिशें मुल्क को कमजोर करती हैं, ऐसी तमाम कोशिशें मुल्क के फैब्रिक को, ताने बाने को कमजोर करती हैं। और जब किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला कमजोर हो जाए, उसका समाजी मामला कमजोर हो जाए, उसका अखलाकी मामला कमजोर हो जाए, उसका आईनी मामला कमजोर हो जाए, तो वो मुल्क ना तो तरक्की कर सकता है और न ही मजबूत रह सकता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सच्चाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें मुल्क की हिफाजत में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क के आईन को बचाने के लिए और मुल्क के आईन के मुताबिक अमल करने के लिए हमें हमेशा आगे रहने की तौफीक दे। इस सिलसिले में जो जिम्मेदारियां हैं फर्द को हमेशा याद रखनी चाहिए। एक बात नोट कर लीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हक मिले और आप अपनी जिम्मेदारी अदा मत कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप जिम्मेदारी न अदा करें और आप हक चाहें। हक तभी मिलता है जब जिम्मेदारी अदा की जाती है। ये अफसोसनाक बात है कि हुकूक की बातें ज्यादा होती हैं और जिम्मेदारियां याद नहीं दिलाई जाती। इसका नतीजा ये है कि लोगों के अंदर एहसास मजलूमियत भी रहता है और साथ ही साथ वो मुल्क में बदउनवानी को, फसाद को फैलाने का जरिया भी बनते हैं। इसलिए जो तवाजुन प्रीएम्बल में है, आइन के पेशे लफ्ज में है कि आइन ने आपको हुकूक भी आपके बताए हैं और आपको आपकी जिम्मेदारियां भी बताई हैं। तो आपको आपके हुकूक ठीक से तब मिलेंगे जब आप अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से अदा करेंगे। फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा हो तो जमात, लाजमी सी बात है कि फर्द से मिल करके बनती है, वो अदा नहीं कर पाएगी। और यही फर्द और जमात मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जब आप अकेले में कोई काम मुल्क के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, आइन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, तो आप समूह में क्या करेंगे? और इसी समूह को अगर गवर्नमेंट बनाने का, शासन करने का मौका मिल जाए तो वो क्या उस आइन और उस संविधान के मुताबिक अमल करेंगे? इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि बिल्कुल पहले मरहले से ये बात याद दिलाई जाए, इस पे फोकस किया जाए कि मुल्क तब तरक्की करता है जब मुल्क के लोग आइन की पाबंदी करते हैं। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझिए कि अगर हम ट्रैफिक सिग्नल को, इशारों को ना माने और हर आदमी अपने हिसाब से गाड़ियां चलाने लगे तो मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े इंसिडेंट होंगे, बड़े बड़े तसादुम होंगे, बड़ी मौतें होंगी, बड़ी हलाकतें होंगी। तो जिस तरह रोड की सेफ्टी के लिए, लोगों की जिंदगी की हिफाजत के लिए और सही ट्रैफिक के लिए ये जरूरी है कि हम ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें, उसी तरह मुल्क को दस्तूर के मुताबिक चलाने के लिए और मुल्क से मिलने वाले फवायद को इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि दस्तूर को माना जाए, उसके मुताबिक अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।